آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، سارے مسلمان دنیا بھر کے رو رہے ہیں. جس کے سینے میں دل ہے وہ رو رہا ہے، کیونکہ بے بس ہیں سب. جن لوگوں نے، جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے، بڑے ایک طریقے سے، جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایکٹیوسٹ کا، کوشش کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں تک ایڈ پہنچائی جائے، بچوں تک ایڈ پہنچائی جائے، کیونکہ وہاں پہ بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. ان کے پاس چھت تو ہے ہی نہیں، لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. اس ایڈ کو بھی روکا گیا. اب جو صورتحال ہے اس وقت، ایران اور اسرائیل کی جو وار چل رہی ہے، پچھلے 5واں دن آج لگ چکا ہے. دنیا بھر کے مسلمان جو ہے نا، ان کو ایک سکون سا مل رہا ہے، ان کو ایک خوشی ہے. لوگ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں جب ایران جو ہے وہ راکٹس مار رہا ہے اسرائیل میں، تباہی مچا رہا ہے، اور لوگ وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دس از مائی کائنڈ آف تھیراپی. ایسا دلی سکون، کیونکہ ہم اتنے عرصے سے فلسطین کی ایک بڑی، جسے کہتے ہیں ویل ڈاکیومنٹڈ وار، وہ دیکھ رہے ہیں، اور دل جو ہے وہ رو رہا ہے، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ ہی ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو روک سکتے ہیں. لیکن اب جب ایران بدلہ لے رہا ہے تو جو دلی سکون مل رہا ہے اس وقت، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. دنیا بھر کے مسلمان اس پہ بہت خوش ہیں. لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایران کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ یہ جو وار ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اسرائیل کے پاس ساری انفارمیشن آلریڈی موجود تھی، کیونکہ امریکہ میں ایسے جو ایران مخالف گروپس ہیں، انہوں نے امریکن ایڈمنسٹریشن کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ دے دی تھی. انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ جاری کی تھی، اور اس رپورٹ میں جتنی بھی یہ ایٹمک تنصیبات ہیں ایران کی، اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ لوکیٹڈ ہے. جتنی ڈیٹیلز تھی، اس سے کیا ہوا کہ آسانی ہو گئی اسرائیل کے لیے حملہ کرنے کے لیے، اور اس نے بڑے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ حملے کیے. اب اسرائیل جو ہے، جب اس نے یہ ٹارگیٹڈ حملے کیے تو اس میں ایران کے سائنٹسٹ، اس کے آرمی آفیشلز اور جو ایٹمی تنصیبات تھیں، ان کو نشانہ بنایا اور ختم کر دیا. اب ایران نے جب جواب دیا تو وہ دیکھنے والا ہے. وہ کہتے ہیں نا، مسلمان کا ایمان ہی سب کچھ ہے، اور جب مسلمان میدان جنگ میں اترتا ہے تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اور جب مسلمانوں کے بچے یہ بات کہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، تو ایسے لوگوں کو کیا ہی کوئی ڈرا سکتا ہے. اور وہی صورتحال ہے. جیسا پاکستان نے جواب دیا تھا انڈیا کو، بالکل اسی طرح سے ایران نے جواب دیا اسرائیل کو. اگر دیکھا جائے تو ایران کے پاس اس طرح کے ویپنز نہیں ہیں، کوئی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں ہیں، نہ ہی ٹیکنالوجی ہے اس قسم کی، نہ ہی ایفیشنٹ ہیں اس کے ویپنز، نہ ہی افیکٹو ہیں. لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اگر بات کی جائے کہ ایران نے جب حملہ شروع کیا، تو ابھی میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایران نے خود آ کے یہ چیز ایکسیپٹ کی کہ ہم نے شروع میں 2 دن جو ہے جب جوابی کارروائی کی، تو اس میں ہم نے جو ہمارے پاس ایسے سارے میزلز تھے جو ایکسپائر ہونے والے تھے، جو ایران کو استعمال کرنے تھے، 2 دن ان سے اٹیک کیا ایران نے. مطلب اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ بارش ہو رہی تھی اور لوگ خوش ہو رہے تھے، دنیا بھر کے مسلمان کے یار یہ ہونا چاہیے تھا، یہ جو ہے یہ دن ہم نے دیکھنا تھا. بیکاز اتنے عرصے سے، اتنے مہینوں سے ہم ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں جس طرح فلسطینیوں پہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارا دل روتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. لیکن اب جو ہے ایون غازہ میں بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اس وقت وار دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے فلسطین کی وار بہت ویل ڈاکیومنٹڈ تھی، اسی طرح سے اسرائیل اور ایران کی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایران اس طرح سے جواب دے رہا ہے. ایران کو جواب دینا آتا ہے. اب آپ اس وقت سچویشن اگر دیکھیں اسرائیل کی، تو اسرائیلیز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنی جان بچا رہے ہیں. اب یہاں پہ ان سے کوئی پوچھے کہ کس طرح سے تم لوگوں نے مظالم ڈھائے معصوم لوگوں پر جو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اب جب تم پر میزلز، راکٹ داغے جا رہے ہیں تو تم لوگوں کی جان پہ بنائیے اور تم لوگ بھاگ رہے ہو. ان کا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، ان کا تو آٹے میں نمک کے برابر نقصان ہوا ہے. انہوں نے جو نقصان کر دیا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ سچویشن آپ کے سامنے. لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کہ ایران پہ یہ جو حملہ ہوا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اسرائیل کا، اور اس وقت کیا سچویشن ہے، ایران جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ جس طرح سے ایران نے شروع کے 2 دن جو ہے جب حملہ کیا، تو اس نے اپنے جو ایکسپائر ہونے والے تھے میزلز، ان کا استعمال کیا. اب اس کے پیچھے مقصد کیا تھا ایران کا؟ ایران خود سامنے آیا، اس نے یہ بات ایکسیپٹ کی، اور اس نے بتایا کہ یہ جو
मिसाइल्स थे कि बेसिकली आयरन डोम पर ये इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब आयरन डोम जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर उसके बारे में बात की जाए तो ये एक सिस्टम होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो इंटरसेप्ट करे और डिस्ट्रॉय करे जो शॉर्ट रेंज के रॉकेट्स होते हैं, आर्टिलरी के जो शेल्स होते हैं जो फायर किए जाते हैं 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर की रेंज तक, उसको ये टारगेट कर रहा था। कि ये लोग जो है जो मिसाइल्स का स्टॉक है उसको हिट कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे कि सिस्टम जो है वो कहाँ पर है, सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। और उसके बाद 2 दिन ये जब इन्होंने दागे मिसाइल्स अपने पुराने, तो उसके बाद जो है अब जाके इन्होंने जो अपना सही हथियार था, ताकतवर हथियार था, उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लोग इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर ईरान के पास इतना सब कुछ कहाँ से आया, क्योंकि इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। अब ईरान जो है नॉन स्टॉप हमला कर रहा है, एक पैटर्न है उसका। अब की बार आज जो है वो थोड़ा पहले उसने अटैक कर लिया, उससे पहले एक मखसूस टाइम और एक पैटर्न था, उसको ईरान फॉलो कर रहा था। इसराइल भी परेशान होगा कि ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि ईरान इस तरह से रिटेलिएट करेगा, इस तरह से हमें जवाब देगा। अगर हम बात करें इजरायली प्राइम मिनिस्टर की, तो वो तो 2 दिन छुपे रहे और उसके बाद जब उनका जो आबाई जगह थी उसको टारगेट किया गया, वो तबाह हुई, तो तब वो अपने घर से बाहर निकले। उससे पहले तो वो छुपा बैठा हुआ था। इसराइलीज को देख लें तो वो भी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और पूरी दुनिया में उनका तमाशा बन रहा है, पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। अब लोग जो हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये वॉर तो छिड़ी हुई है, लेकिन अब मुमकिना नताइज जो हैं वो क्या हो सकते हैं इस वॉर के। मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं या मसले मसाइल जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि जंग हो। जंग से सिर्फ तबाही मचती है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह की मौत हो, लेकिन क्योंकि इसराइल को जवाब देना बहुत ज़रूरी था और हमने यहूदियों के ख़िलाफ़ तो खड़े होना है, हमने तो जंग लड़नी है, हमने तो जहाद करना है। और इजराइल ने जितने जुल्म सितम ढाए हुए थे तो उसका जवाब तो देना ही था। अब बज़ाहिर ये लगता है कि जो सूरत हाल है वो मज़ीद पेचीदा होगी। इस वक्त आप किसी को भी सुन लें, आप आर्टिकल्स पढ़ लें, कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि ऊँट जो है किस करवट बैठेगा, आगे क्या होगा। सिर्फ चीज़ें मज़ीद पेचीदा ही होंगी और यही इम्कान किया जा रहा है। हर नया दिन जो शुरू होता है उसमें एक नई चीज़ सामने आ जाती है, मतलब मज़ीद जो है कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। और अगर बात की जाए ट्रम्प की, तो ट्रम्प का जो मूड है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ट्रम्प ने जो रोल प्ले किया था इंडिया और पाकिस्तान की जंग से पहले, जब पहलगाम अटैक हुआ तो उस वक्त भी ट्रम्प ने उसको हंसी मजाक में टाल दिया और एक तरह से इंडिया को इशारा दिया कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, यानी कि वॉर जो है वो शुरू हो जाए। ट्रम्प की ये ख्वाहिश थी और ऐसा ही हुआ। और जब वॉर हो गई तो फिर उन्होंने सारा क्रेडिट, जब देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया को पता चल गया, इज्जत पाकिस्तानियों की पूरी दुनिया में होगी कि किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज जो है कितनी केपेबल है, कितनी सलाहियत रखती है अपने दुश्मन से, अपने गलीज़ घटिया दुश्मन से लड़ने की। तो ट्रम्प का रवैया बदल गया और ट्रम्प जो है उसने सारा क्रेडिट ले लिया कि भाई ये तो मेरी वजह से हुआ है, मैंने सुलह करवाई है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि किसने क्या किया और पाकिस्तान ने किस तरह से अपने दुश्मन को मात दी। और अभी भी ट्रम्प एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। ट्रम्प जो है पहले उन्होंने बड़ी धमकियां लगाई, बड़ी उनके अंदर अकड़ थी, और अब जब वो देख रहे हैं कि ईरान ने जवाब दिया, ईरान जो है वो चुप नहीं बैठ रहा और धड़ाधड़ जो है वो हमले कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो ट्रम्प जो है उनका मूड भी बड़ा ख़राब हो गया। और फिर वो जो उनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी मैं तो पीस मेकर हूँ, मैं तो पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि सब वो जो इंडियन टर्म होती है शांति से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, पूरी दुनिया में भाईचारा हो। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स है। ये सब जो है ड्रामेबाजी है। ट्रम्प जो है वो एक कार्टून किस्म की शख्सियत के मालिक हैं और जो उनकी शख्सियत है, जिस तरह के वो हैं, सारी दुनिया के सामने खुलकर आ गया है, क्योंकि उनको एक्टिंग नहीं करनी आती। अब ट्रम्प को लोग वैसे तो कहते थे कि जी बेहतर हैं, लेकिन ट्रम्प भी किसी के सगे नहीं है। सारे के सारे जो है वो नहीं चाहते, ये सब जो है अंदर से मुसलमानों से नफरत करते हैं। ये सिर्फ अपना मफाद सोचते हैं। ये चाहते हैं कि जी हम वर्ल्ड पावर हैं, हम सुपर पावर हैं और हम ही सुपर पावर हैं, कोई आगे ना आए, किसी को किसी किस्म का फ़ायदा ना हो, सब हमसे भीख मांगते रहें, हमारे इशारों पे नाचें। और इस वक्त भी यही हुआ। जब ट्रम्प ने शुरू में बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी मैं सुलह करा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तो लोगों में एक उम्मीद जागी थी, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हो गया।
जंग छिड़ गई, ईरान ने ज़बरदस्त जवाब दिया। अब ट्रम्प जो है इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं तो इस तरह की बातें कर रहा था और अब जो है मेरे हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो वॉर छिड़ी, इसराइल ने हमला किया, जिसके बारे में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी पता था, तो इसके पीछे मकसद क्या था, ये ईरान को क्यों टारगेट करना चाह रहे थे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है उसको तबाह करना चाहते थे। दूसरी चीज़ ये है कि ये ईरान की जो रजीम है उसको बदलना चाहते थे। ईरान के अंदर ही टर्मोइल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, किओस क्रिएट करना चाहते हैं कि अंदर ही अपने ही लोग उनको बोलें कि भाई तुम जो है हुकूमत छोड़ो और अब जो है हम दूसरा हुक्मरान लेकर आएंगे जो कि डेफिनेटली इसराइल की मर्ज़ी का होता और यूएस की मर्ज़ी का होता, या लोग जो है बगावत करते और रेवोल्यूशन आ जाती। ये मकसद था। अब बेसिकली ये जो सारी लड़ाई हो रही है ये हो रही है चाइना के ख़िलाफ़, क्योंकि चाइना जो है इस वक्त सुपर पावर है। चाइना की अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में उसकी प्रोडक्शन जा रही है, पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमने कोई चीज़ लेनी है किसी भी क्वालिटी की, हल्की क्वालिटी से लेके बेहतरीन क्वालिटी की चीज़, एक ही चीज़ आपको मुख्तलिफ क्वालिटी में मिल जाएगी। अब दुनिया भर से लोग जो है वो चाइना से चीज़ें लेके जाते हैं या चाइना से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाइना जो है इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि जब कुवैत और इराक पर एलाइड फोर्सेस गई थी तो तब भी यही प्रॉब्लम थी कि जर्मनी और जापान जो है वो मुकम्मल तौर पे उनकी जो इकॉनमी थी उनका इन्हिसार था कुवैत और इराक के ऑयल पर। तो उस वक्त भी इनका मकसद ये था वेस्ट का, इसराइल का, कि वो किसी तरह से जापान को, जर्मनी को अंडर कंट्रोल रखें, उनको फ्लरिश ना करने दें। यहाँ पर भी ईरान का जो ऑयल है उसका जो सबसे बड़ा बायर है, जो मैक्सिमम ऑयल जो है ईरान का बाय कर रहा है वो चाइना है। और अगर यहाँ पर इसराइल की या वेस्ट की आप कह लें कि कोई फेवरेट हुकूमत आ जाती है तो जितनी भी डील्स होंगी वो इनके हक में होंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ईरान का जो मैक्सिमम ऑयल है उसको ख़रीद रहा है चाइना। चाइना सबसे बड़ा इस वक्त आप कह लें कि बायर है ईरान के तेल का। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये चाहते हैं कि अगर रजीम चेंज होती है, जो कि ये चाह रहे हैं कि हो जाए, तो उससे फ़ायदा जो है वो वेस्ट का है, इसराइल का है। क्योंकि अगर हुकूमत नहीं आएगी तो ये कोई अपना बंदा लेकर आएंगे, फिर होगा ये कि इनकी मर्ज़ी की डील्स होंगी, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब होगा। अब चाइना को इस वक्त जिस कीमत पे तेल मिल रहा है, अगर उसको इस कीमत पे तेल नहीं मिला तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगी। जब प्रोडक्शन अफेक्ट होगी तो उससे फ़ायदा होगा वेस्ट को, उनकी जो इकॉनमी है वो फ़ायदे में रहेगी और चाइना जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो जिस तरह से इस वक्त प्रोडक्शन कर रहा है वो नहीं कर सकेगा। एनर्जी की जो कॉस्ट है जब नेचुरली बढ़ जाएगी तो उस तरह से प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। इस तरह से शुरू में इंडिया को भी चाइना के अगेंस्ट जो है कर दिया गया था। ये पूरा एक प्लान का हिस्सा था। अब जो सारा मसला है वो मसला है चाइना का। पाकिस्तान चाइना साथ एक दूसरे के खड़े हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। इंडिया जो है उसको बुरी तरह से शिकस्त मिल चुकी है और उसकी वही सूरत हाल है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। समझ नहीं आ रहा मोदी को कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, और वही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोग बेवकूफ़ बन भी रहे हैं जिनको अकल नहीं है, समझ नहीं है। अब ये जो जंग है, गाहे बगाहे जो है चीज़ें बदलती जा रही हैं, मज़ीद पेचीदा हो रही हैं, लेकिन वी आर जस्ट होपिंग। हम मुसलमान जो है हमारा ईमान इतना पुख्ता है और हमें पता है कि हमारे साथ जो है सुपर पावर है और एक ही सुपर पावर है हमारे लिए, वो है अल्लाह की ज़ात। और सबने देखा कि किस तरह हमने जंग लड़ी, और जहाँ अल्लाह साथ होता है वहाँ पे शिकस्त जो है नहीं मिल सकती आपको। तो ईरान जो है वो लगा हुआ है, उसने ये थाम ली है कि इसराइल को अब नहीं छोड़ना है। एंड आई होप कि इसराइल को शिकस्त मिले। लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सो ये थी चंद बातें जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।